لوگ کہتے ہیں کہ بائبل مقدس تبدیل ہو گئی ہے. میں یہ تو نہیں جانتی، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ بائبل مقدس نے میری زندگی تبدیل کر دی ہے. تو جو آسمان پر تخت نشیں ہے، میں اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتا ہوں. دیکھ، جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں، اسی طرح ہماری آنکھیں خداوند اپنے خدا کی طرف لگی ہیں جب تک وہ ہم پر رحم نہ کرے. پروگرام خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی میں ایک بار پھر سے شائستہ آصف آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے اور دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید. حسب معمول سب سے پہلے خداوند کی حمد و ثنا اور پرستش. تو آئیے خداوند کی ستائش میں ڈاکٹر روپ جارڈن سے یہ خوبصورت گیت سنیں. پہلے دن یہ کہا
जी नाज़रीन, अभी आप डॉक्टर रूप जॉर्डन की खूबसूरत आवाज़ में ये गीत सुन रहे थे और मेरा ईमान है कि आपने ज़रूर इस गीत के वसीला से बरकत पाई है। अभी वक्त है ड्रामा देखने का, तो आइए ये नसीहत आमोज़ ड्रामा देखें। एक कहानी है एक सामरी ते एक मुसाफिर दी। ये मुसाफिर यरूशलेम तो यरू दी तरफ सफर कर रहा सी। सफर बड़ा लंबा ते मुश्किल सी, पर ये मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा रहा। सफर के दौरान वो बड़ा खुश सी, क्योंकि वो बड़े अरसे बाद अपने घर जा रहा सी। पर उन्होंने की पता सी कि अगे उहदे नाल की होने वाला है। चल खोता छड़ दे, ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੋ, ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਕੱਢ ਲੋ। वाह 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 वाह, ਲੱਭ ਗਿਆ ਮਾਲ ਜੀ। सरदार खोता भी चंगा है। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਯਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲਾਂ। ਓਏ ਚੱਲ ਓਏ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ। सरदार माल भी चंगा है। ਓ ਚੱਲ ਚੱਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ, ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਭਾਜੀ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਤੋੜ ਦੋ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ। आज सरदार खोता फड़ो। प्रिया ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਅਦਮੂਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਤਫਾਕਨ ਇੱਕ ਕਾਹਿਨ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਤਰਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਾਵੀ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਤਰਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਆ ਨਿਕਲਿਆ। की नाम है तेरा? बड़े जालिम डाकू सी।
ਪੁੱਤਰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਵਾਨੋ? ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਯਰੂ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਲਹੂ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆ ਜਲਦੀ ਕਰ। ਆ ਪੁੱਤਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆ ਗਰਮ, ਜਲਦੀ ਕਰ। तू फिक्र ना कर, वो बच जाएगा। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। तू बेफिक्र होकर अपने सफर ते जा, मैं इनका इलाज बड़ी चंगी तरह करांगा। हाँ भी जवाना, की हाल है तेरा? जख्म तेरे ठीक होंदे पए ने? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? और नहीं जवाना, तेनू इत्थे मैं नहीं लिया, बल्कि तेरे वर्गा एक राहगीर ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਲੇਟ ਜਾ ਜਵਾਨਾ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਫੜਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਜਵਾਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ। वाह जमाना, तेरा जिक्र हो रहा सी। आजा आजा अंदर। ਲੈ ਵੀ ਜਵਾਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੌਸਨ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਟਿਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਯਰੂ ਦੇ ਡਾਕੂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰਕੇ ਅਦਮੂਮਿਆ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਗਏ ਸੀ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਪਾਇਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੈ ਜਵਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਯਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਹ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਯਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ।
ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। हकीम साहब आ कुछ पैसे रखो। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨੋ, ਪੈਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਜਾਓ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਹ ਤਮਸੀਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਦਾਵਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਚਾਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਸ ਤਮਸੀਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਰਗੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖੀਏ। जी नाज़रीन, अभी आपने ये सबक आमोज़ ड्रामा देखा और मेरा ईमान है कि इस ड्रामा के वसीला से आपने ज़रूर खुदा के कलाम को सीखा है। और भी वक्त है हमारी आज की आयत का, तो आइए केवन और उनके टीचर के पास चलते हैं जो हमें बाइबल मुकद्दस में से आज की आयत सिखाएंगे। गुड मॉर्निंग केवन और नाज़रीन, केवन और मेरी तरफ से आप सबकी खिदमत में आदाब। नाज़रीन, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आप खुदा के कलाम को बड़ी दिलचस्पी के साथ जुबानी याद कर रहे हैं। केवन, मेरी एक ख्वाहिश है कि हम खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा जुबानी याद कर सकें। केवन, आज हम मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील 5वां बाब उसकी 14वीं आयत करेंगे। तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। हाँ केवन, जरूर। ये खूबसूरत आयत हमारे निजात दहिंदा ने उन लोगों के बारे में बयान की है जो उस पर ईमान लाकर उसे कबूल करते हैं। तो केवन, क्योंकि वो खुद नूर है, इसलिए वो लोग जो उसे कबूल करते हैं वो उस नूर का हिस्सा बन जाते हैं। जी हाँ केवन, तब हमें भी चाहिए कि हम अपने आप को नूर साबित करें और तारीख ज़हनों को उसके कलाम से मुनव्वर करें। और केवन, अपने किरदार, अपनी गुफ्तार और चाल चलन से भी ये साबित करें कि हम वाकई ही नूर हैं और दूसरों से अलग हैं, तभी हम नूर कहलाएंगे। वेरी गुड केवन। नाज़रीन, अभी वक्त है कि हम इस आयत को ज़ुबानी याद करेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील 5वां बाब उसकी 14वीं आयत। तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। खुदावंद आपको बरकत दे। नाज़रीन, अभी हम केवन और उनके टीचर से बाइबल मुकद्दस में से आज की ये आयत सीख रहे थे और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप खुदा के कलाम को ज़रूर सीखें, इसको पढ़ें और इसमें तरक्की करते चले जाएं
ताकि खुदावंद आपको सरफराज करे। और अभी वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म के वसीला से भी खुदा के कलाम को मज़ीद सीखें। तो आइए वकास पतरस के पास चलते हैं जो हमें डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म में से कलाम का ये हिस्सा सिखाएंगे। खुदा यसुल मसीह के जिंदार जलाली नाम में वकास पतरस एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और उसी के कादर नाम में आप सबको सलाम पेश करता है। और नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर हफ्ता इस एपिसोड के वसीला से खुदा के कलाम को सीखते हैं और इसी तरह हमारा आज का मज़मून है इलाही सिफात से अक्ल फहम हासिल करना, जिसमें हम सीखेंगे खुदा की इलाही सिफात से अक्ल फहम हासिल करने के अल्फाज रूहुल कुद्दस के काम के बारे में क्या वाज़े करते हैं। और नाज़रीन, इसका जवाब है कि ये अल्फाज इस बात की तशरीह करते हैं कि रूहुल कुद्दस मुझे बेईमानी के अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाया और अब मैं वो तमाम नेमतें और इनाम ईमान के वसीला से देख सकता हूँ जो खुदा ने मुझे मसीह में अता किए। तो आए इस हकीकत को बाइबल मुकद्दस में से जानते हैं। यूहन्ना 8:12 आयत, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में न चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। अमाल 25:17 और 18 आए, और मैं तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोल दे ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रजू लाएं और मुझ पर ईमान लाने के बायस गुनाहों की मुआफ़ी और मुक़द्दसों में शरीक होकर मेरास पाएं। दूसरा ग्रंथियों 4 और 6 आए, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमकाता है कि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। जी नाज़रीन, अभी हम खुदा के कलाम में से सीख रहे थे कि रूहुल कुद्दस मुझे बेईमानी के अंधेरे से निकाल कर ईमान की रोशनी में लाया और अब मैं वो तमाम नेमतें और इनाम ईमान के वसीला से देख सकता हूँ जो खुदा ने मुझे मसीह में अता की। और अभी हम सीखेंगे खुदा की वो कौन सी सिफात हैं जिनकी रूहुल कुद्दस ने मुझे आगाही बख्शी कि मैं उनको ईमान के वसीला से देख सकूं। और नाज़रीन, इसका जवाब है रूहुल कुद्दस ने मुझे आगाही बख्शी कि मैं खुदा की बेश कीमत इनाम और नेमतें जैसे गुनाहों की माफ़ी, तसल्ली, उम्मीद, शादमानी और आराम को ईमान के वसीला से देख सकूं। तो आए बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात का मुतालिया करते हैं और इस बात को सीखते हैं। इफ्सियों 1:7 आयत, हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की मुआफ़ी उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। रोमियो 15:13 आयत, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बाद सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूहुल कुद्दस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज़्यादा हो जाए। रोमियो 8:24 और 25 आए, मगर जिसकी उम्मीद है जब वो नज़र आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी, क्योंकि जो चीज़ कोई देख रहा है उसकी उम्मीद क्या करेगा। लेकिन जिस चीज़ को नहीं देखते अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह देखते हैं। अभी हम सीख रहे थे रूहुल कुद्दस ने मुझे आगाही बख्शी कि खुदा की बेशकीमत इनाम और नेमतें जैसे गुनाहों की माफ़ी, तसल्ली, उम्मीद, शादमानी और आराम को ईमान के वसीला से देख सकूं। और अभी हम सीखेंगे रूहुल कुद्दस में अंदर क्या तब्दीली लाता है जब वो अंजील के ज़रिया मेरी तकदीस करता है। और नाज़रीन, इसका जवाब है जब रूहुल कुद्दस अंजील के वसीला से मेरी तकदीस करता है तो वो मेरी रहनुमाई करता है कि मैं गुनाहों से नफरत करूं और पाक ज़िंदगी गुजारूं जो नेक इमाल से भरी हो। तो आए बाइबल की रोशनी में इस बात को जानते हैं। यशाया 61:10 आयत, मैं खुदावंद में बहुत शादमान हूँगा, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे नजात के कपड़े पहनाए, उसने रास्तबाजी की खिल्लत से मुझे मुलब्बस किया।
लूका 2 बाब 10वीं आयत। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। और रोमियो 5वां बाब 2 और 3 आयत। और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फ़ख्र करें, और यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फ़ख्र करें। जी नाजरीन, अभी हमने खुदा के कलाम को डॉक्टर मार्टिन लूथर के मुख्तसर कैटेकिज्म में से सीखा, और मेरा ईमान है कि हमने आज के कलाम के वसीला से ढेरों बरकत हासिल की हैं। और अभी वकास पतरस आपसे इजाज़त चाहता है, अगले हफ्ता फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर अशरफ जान है। पाकिस्तान बनने से कबल मेरे दादा सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन खुदा ने उन्हें अपनी रोशनी बख्शी और अपने फजल की बदौलत मसीही ईमान जैसी दौलत में शामिल किया, और यूँ मैं मसीही घराने में पैदा हुआ। लेकिन मेरे वालिदैन रोमन कैथलिक मसीही थे। इस तरह से मैं भी रोमन कैथलिक मैंने भी तालीम पाई, और हमेशा रोमन कैथलिक मसीह होने पर बड़ा फ़ख्र महसूस किया। जब मैं अभी जवान ही था तो एक खुदा के बंदा ने मुझसे सवाल किया, क्या आप मसीही हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं बचपन ही से पैदाइशी तौर पर मसीही हूँ। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। शख्सी तौर पर आपने कब मसीह को कबूल किया? मैंने सोचा यह कैसा फजूल सवाल है। कुछ दिन बाद दौरान बाइबल स्टडी खुदा ने अपने कलाम मुक़द्दस हबक्कूक नबी का सहीफ़ा और उसका 2 बाब और उसकी 4थी आयत के ज़रिया मुझ पर ज़ाहिर किया कि मुतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं लेकिन रास्तबाज ईमान से ज़िंदा रहेगा। कलाम की इस आयत ने मुझ पर ज़ाहिर किया कि मैं बहुत मुतकब्बर हूँ। अपने हसब नसब पर, अपनी कौम भट्टी होने पर, रोमन कैथलिक होने पर, मुक़द्दसा मरियम पर, अपनी ज़िंदगी, अपने अच्छे कामों पर। लेकिन कलाम की इस रोशनी ने मुझे अपने आप को पहचानने में मदद की, और यूँ 20 अगस्त 1986 को मैंने हकीकी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को पहचाना और उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। तब से आज के दिन तक मैं समझ गया हूँ कि मैं क्यों मसीही हूँ। तकरीबन 32 साल से मैं खुदावंद के साथ रफ़ाकत में हूँ। इन 32 सालों में मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे अंजील की मनादी और खुशखबरी के लिए कसरत से इस्तेमाल किया। उसने मुझे जिस मकसद के लिए चुना उसी मकसद को पूरा करने की कोशिश में लगा हूँ। और कलाम मुक़द्दस की ये आयत कि मैंने नहीं बल्कि तूने मुझे चुन लिया मेरी ज़िंदगी पर पूरी उतरती है। उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा और ना छोड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने कमज़ोर हाथों को उसके मजबूत हाथों में दे दिया है। खुदा ने इस बड़ी खिदमत में मेरा साथ देने के लिए ईमानदार नेक बीवी मुझे तोहफ़ा में अता की, जिसने हर मुश्किल में मेरी हौसला अफजाई और मदद की। खुदा ने मुझे 4 खूबसूरत और ताबेदार बच्चे अता किए। खुदा की इन बेशुमार बरकतों और रहमतों के लिए मैं उसका तहे दिल से मशकूर हूँ और अपने मसीही होने पर फ़ख्र महसूस करता हूँ। नाज़रीन, अभी आप हमारा प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी देख रहे थे। मेरा ईमान है कि प्रोग्राम के तमाम सेगमेंट्स के वसीला से आपने ज़रूर बरकत पाई है। प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपकी कीमती आरा की हमें बेहद ज़रूरत है। प्रोग्राम की पसंदीदगी, मशवरा जान और दुआया दरख्वास्तों के लिए आप हमें इस पता पर राब्ता कर सकते हैं। हमारा पता है कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च, 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल। कॉल्स और मैसेजेस के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 0304-450-4787। अपना ख्याल रखिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे।